morning student. Today's subject is English. In English your first chapter is limericks. Okay. So we read about this limericks in my previous video. Today we will solve the question answer and book work. So let's start. First question is choose the correct option. You will tick the correct. You will tick it on your book on the correct answer. Okay. So the old man in a tree was bought by. So look at this picture. There was an old man in a tree. So who was horribly bored by a bee. So in this question the old man in a tree was bored by a options में है B flea and C है knee. So the old man in a tree was bored by a bee. Okay. So first question का आंसर है B. Second, how many larks? How many larks? Larks is a bird. Okay. How many larks were there in the beard of the old man? How many larks? Look at this picture. There was an old man with beard. So count the larks in this line. 4 larks and a wren. Okay. So look at this picture properly. 4 larks in his beard. 1, 2, 3, 4. So correct option is C. 4 larks. फर्स्ट में होगा सी ए, सेकेंड में होगा सी. ओके. हाउ मेनी लार्क्स वर देयर इन द बियर्ड ऑफ द ओल्ड मैन? 4 लार्क्स. ओके. सो यू विल टिक ऑन बी एंड 4 लार्क्स. ए स्टीड इज ए थर्ड. ए स्टीड इज what is steed? Steed is a horse. Okay. So a steed is a horse. So fourth is the man who had great presence of mind was from. So in this third picture, look at this man. Okay, whose presence of mind was amazing. The old man presence of mind was amazing. Okay, he was from Basing. Okay, he was from Basing. Basing is a place. Basing is the name of a place. Okay. So in the fourth, tick the correct answer. The man who had great presence of mind was from Basing. So fourth में you will tick on A option. Sorry, you will tick on B option. B option is Basing. Okay. B option is Basing. So B. Okay. So now we will solve the question and answer from the lines of poem. Lines from the poem. Okay. So second question is read the lines from the poem and answer the question. Okay. So first question is, remember I will write only answers. Okay, you will write question from your book and then write your answer, which I write on board. Okay. So B option is read the lines from the poem and answer the question. So first question is, when they said, does it buzz? He replied, yes it does. Who said to old man,
does it buzz? People say to old man. Okay, so who does they refer to? फर्स्ट में होगा, बी के फर्स्ट में होगा pupil. ओके, सो बी के फर्स्ट का है ये, फर्स्ट के ए में होगा pupil. लिमरिक से कुछ लाइंस ली हुई है, तो आपको है ना उस लाइन के से 2-3 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, उसके आंसर मैं यहाँ राइट करवा रही हूँ. ओके, व्हेन दे सेड डज इट बज, ही रिप्लाइड यस इट डज. इस लाइन से 3 क्वेश्चंस बने हैं इस सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो आपको उसके आंसर्स यहाँ राइट करने हैं. तो मैंने यहाँ सिर्फ आंसर्स राइट किए हैं, क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक से राइट करोगे. ओके, सो फर्स्ट है हु डज दे रेफर टू? pupil. pupil refer to. ओके, सो फर्स्ट में होगा pupil. सेकंड है बी, what buzzes? what buzzes? बज कौन करता है? बी. सो इन दिस सेकंड ऑप्शन बी, सेकंड क्वेश्चन सॉरी. इन सी who is he? who is he? he was an old man. okay, so old. okay, third, so this second question is from B options. okay, it is just as I feared. okay, it is also a line of this limericks. so it is just as I feared. who said it is just as I feared? old man said it is just as I feared. so in second you will write old man. okay, old man said it is just as I feared. in second option B, what was he afraid of? he afraid from birds. so you will write the name of the birds. so 2 owls, and a hen. 2 owls, a hen, 4 larks, and a wren. okay, in C question, did his fear come true? yes, his fear come true. so in third yes. okay, so we have done the question answer of the limericks. now we will do grammar work. okay, write 3 rhyming words for each of these words. do not repeat words from the poem. so पेज नंबर 14 पे जो वोकेबुलरी है उसमें आपको फर्स्ट आपका है ए में एक क्वेश्चन है राइट 3 रीमिंग वर्ड्स. हमें 3 रीमिंग वर्ड्स राइट करने हैं जो कि हमें रिपीट नहीं करने पोएम से. हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं तो उसके हमें रीमिंग वर्ड राइट करने हैं. सो उसमें एक है राइट रीमिंग वर्ड्स, या आप नोटबुक से राइट कर बुक से राइट करोगे अपनी नोटबुक में. ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज केक. केक का बेक, मेक एंड
take. Okay. Second, hen, hen, man, pen, and ran. Sorry, you will write here van. Okay. So when, sorry, you will write it 10. Okay. In third of the word is speed. These words are given in your notebook, sorry, book. So you will write from steed. Steed, seed, feed. क्या होगा? वीट. ओके. थर्ड, फोर्थ, thin. Word is thin. So win, pin, and chin. Okay. Fifth word is free, tree, free, B, and C. ओके. सो ये आपको बुक में करना है, ये बुक वर्क है. और जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है वो भी आपको बुक में टिक करने उनके, पर जो क्वेश्चन आंसर्स है ना वो आपको नोटबुक में राइट करने हैं. ओके. सो सेकंड है टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पोइम. करेक्ट ऑफ वर्ड्स मीनिंग पे टिक करना है. ओके. सो बी है अमेजिंग. फर्स्ट वर्ड है अमेजिंग. अमेजिंग मीन्स वंडरफुल. ओके. सो यू विल टिक ऑन वंडरफुल. रिमेंबर नोटबुक में राइट नहीं करना है, ये आपको बुक में टिक करना है. फर्स्ट वर्ड इज वंडरफुल. सेकेंड है बिल्ट. बिल्ट मीन्स कंस्ट्रक्टेड. बिल्ट का मीनिंग होगा कंस्ट्रक्टेड. ओके. थर्ड इज हॉरिबली. हॉरिबली मीन्स टेरिबली. ओके. फोर्थ इज मिस्टेक. मिस्टेक मीन्स एरर. फिफ्थ इज replied. replied means answered. ओके. सो ये जो वर्ड्स मैंने राइट किए हैं वो आपको नोट इस बुक में, ये जो बुक वर्क है पेज नंबर 14 पे, उसमें टिक करने हैं. रिमेंबर मैंने क्वेश्चन राइट नहीं किए, सिर्फ आंसर्स राइट किए हैं. क्वेश्चंस बुक वर्क के बुक में दिए हुए हैं और जो नोटबुक वर्क है उसके क्वेश्चंस आपको बुक से राइट करने हैं, फिर अपनी नोटबुक में करना है. ओके. सो D is I know. Use the words given in the box to complete the limericks. In book some words है जो कि
दिए हुए हैं, ओके, उन्हें और कुछ फीलिंग्स द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, 5 लाइन्स दी हुई है यहाँ पे, उसमें कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, जो ऊपर हिंट्स दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को उन लाइन्स में ऐड करके एक लिमरिक्स प्रिपेयर करना है, ओके। सो वही है, आई नो, फर्स्ट है, डी का फर्स्ट है, आई नो ए यंग। सो फर्स्ट फिलअप्स में होगा यंग, YOUNG। फर्स्ट का सेकंड है, आई नो ए यंग फेलो फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड विन, ओके। सो ये तो हुआ फर्स्ट और यहाँ जाएगा विन, ये हो गया सेकंड। फर्स्ट का ही सेकंड है ये, फर्स्ट लाइन में राइट करने, दोनों दो फिलअप्स दिए हुए हैं तो दोनों में राइट करने, फर्स्ट फिलअप्स में राइट करोगे यंग, सेकंड वाले में विन। सेकंड लाइन है, his legs are long and astonishingly thin, okay, so you will write thin. Third line है, when he sat in the shade, okay. In fourth line, to drink a cold lemonade, so fourth में होगा cold. In fifth line, he slipped through the straw and fell in, so fifth में slipped and straw. रिमेंबर फर्स्ट एंड फिफ्थ लाइन में 2 फिलअप्स है, तो 2 के मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं फिलअप्स के, तो आपको 2 फिलअप्स में ये करना है, जो फर्स्ट या सबसे जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वो फर्स्ट फिलअप में आएगा और सेकंड में लिखा हुआ वो लास्ट फिलअप में आएगा, ओके। सेम यही करना है, यहाँ पे भी रिपीट यही करना है, फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट फिलअप में, सेकेंड जो लिखा हुआ है वो सेकेंड फिलअप में, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये वो आपका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स। रिमेंबर, जो बुक वर्क है, ग्रामर वर्क है बुक से, वो आपको बुक में राइट करना है, ओके। मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं, तो फिर आपको सिर्फ फिलअप्स में फिल करना है वर्ड्स को, और जो टिक द करेक्ट ऑप्शंस है उसमें टिक करना है। आंसर्स मैंने बोर्ड पे राइट किए हुए हैं। रिमेंबर, क्वेश्चन आंसर्स है लिमरिक्स के, वो आपको नोटबुक में राइट करने, क्वेश्चन आप बुक से राइट करोगे एंड आंसर्स मैंने बोर्ड पे राइट किए हुए हैं, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।